Hello students, welcome to online study English medium, subject English, standard 7th, chapter 7, the invention of Vita Wonk. Dear students, here in this chapter there is an imaginary story. Dear students, there is an invention of Vita Wonk. Vita Wonk, it's a one kind of liquid which is used by one scientist and it's working for if younger people became older and old people became young. So this liquid, it's a one kind of extraordinary invention. So it's very astonishing for people. So it's a totally imaginary story and funny story, dear students, which is written by Roald Dahl. So Roald Dahl was born in 13 September 1916 and was died in 23rd November 1990. And he was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter and wartime fighter pilot. His book has sold more than 250 million copies worldwide. Dear students, Roald Dahl, जिसका बोर्न 13 सितंबर 1916 में हुआ था और जिसकी डेथ है वो 23 नवंबर 1990 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड वॉर टाइम के फाइटर पायलट भी थे, यानी कि वॉर टाइम पे उसने फाइटर पायलट के तौर पे भी काम किया था। उसकी जो बुक है लिखी हुई, उसकी मोर देन 250 मिलियन कॉपीज है, पूरे वर्ल्ड में बिकी हुई थी। Here some literary works given here, dear students, which is contributed by Roald Dahl in English literature, and he was one of the very famous short story writer and novelist. Whose works contributed over here, these are James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, Fantastic Mr. Fox, The Twist, George Marvelous Medicine, Tales of the Unexpected. So, dear students, here these all works given here which was written by Roald Dahl and which is very famous in worldwide. So, let's begin with this chapter, dear students. Before start this chapter, here one paragraph given here which was about Mr. Willy Wonka. Mr. Willy Wonka करके एक साइंटिस्ट होते हैं, वो वोंका वाइट है, वो एक लिक्विड होता है, वो उसका इन्वेंशन करना शुरू करते हैं. So let's begin with this paragraph, dear students. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger, but Wonka White is too strong, so some people disappear. Because their age becomes minus, one person actually becomes minus 87, which means he is got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. मिस्टर विली वोंका करके एक साइंटिस्ट होते हैं. दिस इज द इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक स्टोरी है जो बहुत फनी है कि एक साइंटिस्ट होते हैं मिस्टर विली वोंका करके, वो क्या खोजना शुरू करते हैं, वोंका वाइट खोजना शुरू करते हैं. वोंका वाइट करके एक लिक्विड होता है जो लोगों को बहुत छोटा बना देता था. तो ये जो वोंका वाइट इतना स्ट्रोंग था कि वो कोई लोग है वो तो दिखना ही बंद हो गए, क्योंकि उसकी एज है वो माइनस में चली जाती थी, तो लोग दिखना ही बंद हो जाते थे. तो एक्चुअल में एक पर्सन होता है, उसके साथ क्या होता है कि वो माइनस 87 ईयर्स का हो जाता है. वो 87 ईयर का था तो वो माइनस 87 ईयर का हो जाता है, इतना छोटा बन जाता है लिक्विड पीने के बाद में. उसका मतलब कि जो पर्सन माइनस 87 में चला गया है उसको वापस 87 ईयर्स तक राह देखनी पड़ेगी 87 ईयर्स का होने के लिए. तो जो ये एज उसकी थी 87 ईयर की, उसमें से वो क्या हो जाते हैं, माइनस 87 ईयर के हो जाते. तो वापस से उसको 87 तक पहुंचने के लिए 87 ईयर्स तक उसको राह देखनी पड़ेगी. तो अभी मिस्टर विली वोंका है वो तो फंस चुके हैं ये लिक्विड को इन्वेंट करके
ये वोंका वाइट को इन्वेंट करके। तो अभी मिस्टर विली वोंका को कुछ नई चीज ऐसी इन्वेंट करनी पड़ेगी कि जिससे वापस से लोगों की एज को वो ठीक कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1. Look at the first paragraph. Wonka said, "So once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain, searching for the new recipe. I had to create age to make people older, oldest. Ha ha! I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else?" अभी विली वोंका है, उसने एक वोंका वाइट ऐसा तो खोज लिया था कि जिससे लोगों की एज वो छोटी कर सकते थे, कि बड़ी एज के लोग हैं वो यंगर दिखना शुरू हो जाते थे। तो अभी एक 18 से 87 इयर्स का एक पर्सन है वो -87 में चला गया था। तो अभी मिस्टर विली वोंका को ऐसा कुछ खोजना पड़ेगा कि जिससे वो पर्सन की एज को ठीक कर सके। तो मिस्टर विली वोंका क्या कहते हैं कि चलो वापस से मैंने मेरे हाथ है उसको काम पे लगाए। रोल्ड अप माई स्लीव्स यानी कि वापस से मैंने मेरे हाथ को काम पे लगाए और मैंने मेरा काम करना शुरू किया। और वंस अगेन मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, मैंने थॉट प्रोसेस शुरू की, मैंने सोचना शुरू किया और कुछ न्यू रेसिपी में खोजना चाहता था। और मैं न्यू रेसिपी है यानी कि न्यू मेथड से ऐसा कुछ खोजूं कि जिससे मैं लोगों की एज को वापस ठीक कर सकूं। उसके लिए मैंने सर्चिंग करना शुरू किया और मुझे वो एज को क्रिएट करना ही पड़ेगा, यानी कि जो एज माइनस में चली जा रही थी उसको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। लोगों को वापस से मुझे बड़ा और सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो ऐसे कॉमेडी मूड में बोलते हैं कि वापस से मुझे लोगों की एज को बढ़ाना पड़ेगा, यंग में से ओल्ड बनाना पड़ेगा। और वो जोर से बोलते हैं कि मेरे ये जो आइडियाज है उसको अभी एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है। तो पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा, मिस्टर विली वोंका क्या कहते हैं कि पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कौन सी है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा कौन जीता है। मुझे ये दो चीज को खोजना पड़ेगा। एक तो पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कौन सी है और सबसे ज्यादा लंबा जीने वाला कौन है। A tree, Charlie said. Right you are, Charlie, but what kind of a tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. चार्ली है, वो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो चार्ली रिप्लाई करता है, क्या कहता है कि ट्री। उसका जो उसके साथ में असिस्टेंट था वो उसको रिप्लाई करता है कि ट्री है ना, वो सबसे ज्यादा लंबा जीता है। तो मिस्टर विली वोंका बताते हैं कि सच बोल रहा है तू चार्ली, तू ठीक कह रहा है, बट कौन से टाइप के ट्री का तू बात कर रहा है, कैसा कौन सा ट्री है वो सबसे लंबा जीता है। डॉगलास फीर तो नहीं जीता है, ओक की भी बात नहीं कर रहा है, सेडा ट्री भी इतना नहीं जीता है। तो क्या बोलते हैं, नो नो माय बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये जो पेड़ की बात कर रहे हैं ना वो ब्रिस्टलकोन पाइन एक ही ट्री ऐसा है कि जो यूएसए के अंदर जो नेवाडा है उसमें व्हीलर पीक में ये पेड़ होता है। और ब्रिस्टलकोन पाइन है ना वो तुझे व्हीलर पीक पे आज भी मिलेगा। यूएसए के अंदर नेवाडा में जो व्हीलर पीक है वो एरिया में आज भी तुझे वहां पे ब्रिस्टलकोन पाइन्स पेड़ मिलेंगे जो कितनी बड़ी एज के है, 4,000 इयर्स ओल्ड है, यानी कि 4,000 सालों से वो पेड़ वहां पे एज इट इज खड़े हुए हैं, यानी कि 4,000 साल पुराने पेड़ वहां पे तुझे देखने को मिलेंगे। This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like that word up in the dictionary when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great gas elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things.
ये हकीकत है चार्ली। उसके साथ में मिस्टर वोंका के साथ में जो चार्ली था उसको ये बताते हैं कि यही हकीकत है। और तुम कोई डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को भी पूछ सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ये वर्ड के बारे में, ब्रिस्टलकॉन पाइन ट्री जो है वो वर्ड के बारे में तुम कोई डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो घर पे जाके, जैसा तुमको अच्छा लगे। और तुरंत ही मिस्टर विली वोंका है वो ग्रेट ग्लास एलिवेटर है वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके वो क्या खोजना शुरू करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी स्पेशल आइटम्स की जो जितनी चीजें दुनिया में बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स है पूरे वर्ल्ड में, वो सारी चीजों को कलेक्टिंग करना शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें थी कि जो दुनिया में बहुत पुरानी थी, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी? A pint of sap from a 4,000 year old bristlecone pine, the toenail clippings from a 168 years old Russian farmer called Petrovich Gregorovich, जो 4,000 ईयर पुराना ब्रिस्टलकोन पाइन पेड़ है, उसमें से पिंट ऑफ सेप वो बहुत ही पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है। दूसरा 168 इयर्स का जो ओल्ड रशियन फार्मर है ना, कि जिसका नेम क्या है, पेट्रोविच ग्रेगोरविच, उसके पास से जो टो नेल की जो क्लिपिंग होती है ना वो लेके आनी है। An egg laid by a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga. टोंगा का जो किंग है, जो टोंगा से बिलोंग करता है, वहां से जो टोर्टोइज है, सबसे बड़ी एज का जो टोर्टोइज है कि जो 200 इयर्स ओल्ड एज का है, उसका एग, 200 इयर्स ओल्ड एज का टोर्टोइज जो किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करता है, वो टोर्टोइज का एग। The tale of a 51-year-old horse in Arabia, the whiskers of a 36-year-old cat called crumpets. इसकी पूछ 51-year-old horse जो है अरेबिया में, उसकी टेल है ना वो लेके आनी है। और दूसरा whisker of a 36 years old cat called crumpet, ओल्ड कैट जिसको क्रम्पेट के नेम से जाना जाता है, उसकी मूछ, उसकी विस्कर, 36 ईयर ओल्ड कैट जो है उसकी विस्कर को लेके आना है, जो क्रम्पेट के नेम से जानी जाती है। एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, बहुत पुरानी फ्ली, बहुत ही ओल्ड एज की फ्ली कि जो कहाँ पे रहती है, 36 ईयर्स से क्रम्पेट में रहती है। द टेल ऑफ अ 207-year-old giant rat from Tibet, the black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl, the knuckle bones of a 700-year-old catalu from Peru, 207 ईयर ओल्ड एज का जो जायंट रेट है जो तिब्बत में रहता है, वो तिब्बत से 207 ईयर ओल्ड एज का जायंट रेट है, उसकी पूंछ को लेके आना है। दूसरा जो पोपोकेटेपल है, माउंट पोपोकेटेपल है, वहां पे रहने वाला ओल्ड ग्रिमेल्किन है, जो कहाँ पे रहता है, माउंट पोपोकेटेल की जो केव है उसमें रहता है, उसका ब्लैक टीथ लेके आना है, जो कितनी एज का हो, 97 ईयर ओल्ड एज का ग्रिमेल्किन जो माउंट पोपोकेटेपल में रहता है, उसका काला दांत लेके आना है। और 700 ईयर ओल्ड जो कटालू है जो पेरू से है, उसका नकल बोन। तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया में ऐसी है कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है जो अभी मिस्टर विली वोंका को काम में आएगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेट ऑन I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping.
पूरी दुनिया में चार्ली, मिस्टर वोंका है वो अपनी बातों में आगे बढ़ते ही गए हैं कि पूरी दुनिया में चार्ली, जितनी भी पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट और एंशियंट चीजें हैं एनिमल्स के बारे में, या तो एनिमल्स की जितनी भी पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्ट से, उन सब के बारे में बात करते हुए इम्पोर्टेंट जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सब के बारे में मैंने तुझे बताया, चाहे वो किसी का हेयर हो, किसी का आईब्रो हो, या तो उससे और कुछ ज्यादा। और कभी कभी तो मैंने जो एनिमल के जो टोज होते हैं उसके बीच में जो जम जाता है ना एकदम से, वो जो डस्ट या तो वटेवर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके बीच में जो जम जाता है, वो जो जाम स्क्रैप्ड हुआ होता है, जब वो सो रहे होते तब उसके टोज के बीच में जो जमा हुआ जो होता है उसको भी मैं लेके आया हुआ हूँ। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the stork, the polyfrog, the giant curlicue, the singing slug, and the venomous squircle who can spit poison right into your eye from 50 yards away. जिसमें मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई विसल पिग हो, बॉबलिंग हो, द स्क्रॉक हो, पॉलीफ्रॉग हो, जायंट कर्लिक्यू हो, द स्टिंगिंग स्लग हो, या तो वेनमस स्क्विर्कल हो। और वेनमस स्क्विर्कल तो कैसा है कि वो चाहे आप उससे 50 यार्ड दूर भी हो ना तो भी वो आपकी आंखों में जहर है उसको स्पिट कर सकता है, यानी कि जहर थूक सकता है। Now, but there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid, gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. What did happen? Charlie asked. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है चार्ली कि इन सारी चीजों के बारे में मैं तुझे बताऊं, बट जस्ट मुझे बहुत ही जल्द से मुझे इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका एंड क्या होता है वो मुझे देखना है। तो इतना सारा उबालने के बाद में, इतने सारे बबल्स, इतना सारा मिक्सचर, इतना सारा टेस्टिंग चेक करने के बाद में मेरे इन्वेंटिंग रूम में ये जो सारी चीजें हैं उसको बॉइलिंग करके, बबलिंग करके, मिक्सिंग करके एंड टेस्टिंग करो मेरे इन्वेंटिंग रूम में। और उसमें से मैंने एक ऐसा छोटा सा कप फुल ऑयली ब्लैक लिक्विड बनाया है जिसका 4 ड्रॉप सिर्फ बहुत ही ब्रेव 20 ईयर की ओल्ड एज का जो हमारा वॉलंटियर है ना ओम्पा लुम्पा, उसको सिर्फ 4 ड्रॉप्स पिलाना है ये ऑयली ब्लैक लिक्विड जो मैंने मेरे इन्वेंटिंग रूम में बनाया है। और देखना है कि क्या होता है, व्हाट डिड हैपन, क्या होता है। ओके, तो चार्ली पूछता है व्हाट डिड हैपन, क्या होगा। It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had successfully become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wong invented. So, what happened, dear Charlie? इट वॉज फैंटास्टिक। मिस्टर वोंका जोर से चीख पड़ते हैं कि ये तो फैंटास्टिक चीज हुई, ये मोमेंट को चाहे मैं स्वेलो नहीं कर पा रही, यानी कि मुझसे हजम नहीं हो रही है। वो तुरंत ही वो जो बॉय था 20 ईयर का जो लड़का था, 20 ईयर का ये जो ब्रेव लड़का था, वो एकदम से अपनी जो फेस था उसके ऊपर व्रिंकलिंग होने शुरू हो गया, वो ऐसे कांपने लगा, उसकी बॉडी पे ऐसे व्रिंकलिंग होना शुरू हो गया। जब बूढ़े होते तो स्किन में कैसे ऐसे व्रिंकलिंग होना शुरू हो जाता है, इस तरह से उसकी बॉडी में व्रिंकलिंग होना शुरू हो गया। वो ऐसे कांपने लगा, उसके जो हेयर थे वो 1 बाय 1 ऐसे गिरने लगे, उसके जो टीथ थे वो भी ऐसे गिरने लगे। एंड उसके बारे में मैं जानूं उससे पहले तो वो पर्सन 75 ईयर का हो चुका था। 20 ईयर का जो लड़का जिसको ये ब्लैक ऑयली लिक्विड के 4 ड्रॉप्स पिलाने से वो 75 ईयर्स का हो गया, उसका मतलब वो यंग में से ओल्ड बनाने में सक्सेसफुल हुए मिस्टर विली वोंका। और इस तरह से माय डियर चार्ली,
विटा वोंग है उसको इन्वेंट किया गया था। So this story is over here, which was written by Roald Dahl and from Charlie and the Great Glass Elevator में से ये story ली गई है। This is a totally imaginary story. Dear students, here your explanation of this chapter 7 is over here. And here Mr. Willy Wonka and his assistant Charlie both were presented a good role for this story. Thank you.